Good morning, students. Today we will study this last lesson for standard 12th NCERT book, Flamingo book. The last lesson we are going to start today, that is chapter number 1 of Flamingo NCERT standard 12th. So I am going to start it. In this story, you will see that the importance of one's own language has been highlighted. What is the importance of language? That is here. In this world, we read so many languages, but the importance of mother language is far ahead than others. So, the chapter is based upon the historical fact when German people had conquered Prussia. Prussia was earlier owned by France. So, French people were defeated and German army captured the place, and so here in this story the storyteller got his point, his basis, background to write this story. The place is here, Alsace and Lorraine. So Alsace and Lorraine were earlier occupied by French people, and after Franco-Prussian War fought in 1870 to 1871, French people were overruled and Germans occupied the places Alsace and Lorraine. So this is the story, this is the background. What is the background of this story? The background of the story is that the place Alsace and Lorraine were ruled by French people, France. In 1870 to 1871, a war was fought between Germany and France, in which Germany became victorious and controlled the places named Alsace and Lorraine. क्लियर? अल्सेस एंड लॉरेन नामक जगह जो ऑस्ट्रिया में था, ऑस्ट्रिया के अंदर था, उसको फ्रांस के लोग शासन करते थे। 1870 और 1871 के बीच में जो वार हुआ, फ्रैंको प्रशियन वार, इसमें जर्मनी की सेनाओं ने फ्रांस को पराजित किया और एल्सेस और लॉरेन नामक जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। और जब अपना कब्जा जमा लिया तो वहाँ क्या क्या हुआ? तो सबसे पहला काम जो हुआ वो ये हुआ कि जर्मनी ने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। लैंग्वेज वाज बैंड। विच लैंग्वेज? French language was banned by German rulers, and at the place of French class they ordered to run German classes. फ्रांस के लोगों ने फ्रांसीसी भाषा को पढ़वाते थे या पढ़ाते थे। जर्मनी का जब वहाँ शासन हुआ तो जर्मन लैंग्वेज को मस्ट कर दिया गया और फ्रेंच का क्लास बंद कर दिया गया। सो दिस इज द चैप्टर
about how German was imposed upon French people after their defeat in the war fought between Germany and France in 1870 to 1871. It is said that the freedom of a country or a group or a people depends upon the right of expression in their own mother tongue. मातृभाषा को जब तक हम सेफ नहीं रखेंगे तब तक हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल फ्रीडम सेफ नहीं है. सो दिस चैप्टर इज highlighting the importance of safeguarding of one's own language. व्यक्ति की अपनी भाषा की अक्षुण्णता, safety of own language, is here in this chapter the matter of main concern. That's why I am going to start the chapter line by line. So, listen. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. Narrator. The narrator, who is French. French is a boy. He is studying in a school and he is fearing because he had to tell the teacher his task, complete his task. The task was about participles. He was unable to complete that task, so he was fearful while he was going to school. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. First of all, he thought to run away from the school and spend the time out of the school, away from the school. It was so warm, so bright. The weather was warm and bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill के पीछे जो मैदान था वह कितना खूबसूरत था. बच्चे फ्रेंच ने ये सोचा कि वह क्लास छोड़ के भाग जाता है क्योंकि सर ने जो पार्टिसिपल्स याद करने को बोला था वो उसे याद नहीं था. लेकिन जाते समय जब वो टाउन हॉल के पास गया, देयर ही सॉ ए क्राउड. ही फाउंड आउट ए गैदरिंग and the gathering was reading a bulletin board. On the notice board there was some news. For the last 2 years all our bad news had come from there. वार का जो भी न्यूज होता था वह बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता था जो शहर के टाउन हॉल में था. वहाँ से वो गुजरा, लेकिन 2 साल से पहले से जो भी न्यूज होता था वहीं से मिलता था. तो आज भी कुछ था ऐसा छपा हुआ जिसको देखने के लिए वहाँ भीड़ लगी थी. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. न्यूज में क्या होता था कि बैटल के विषय में, ड्राफ्टिंग कुछ होता था उसके विषय में, और ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब मैटर क्या हो सकता है, न्यूज में क्या होगा, मैंने उसके विषय में भी सोचा. Then next line, then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so, Bob. You will get to your school in plenty of time."
वहाँ जो गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जो इनको मिला, वाचर जो सहायक भी था उसका, वो उन लोगों ने बताया, क्या बताया कि ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर, ब्लैक स्मिथ वहाँ था जो देख रहा था न्यूज़ को, उसने बोला कि बॉब बुआ जी, ये स्कूल जाने का बहुत लेट नहीं हुआ, आराम से जाइए, अभी बहुत टाइम है आपको, प्लेंटी ऑफ टाइम। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड मैम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और ब्लैक और सर जो थे एम हैमेल, उनके पास मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज ए ग्रेट बसल। प्रायः जब स्कूल खुलता था तो वहाँ बसल होता था, शोर होता था। बसल, BUSTLE, बसल, बसल मीन्स शोर, नॉइज, closing of desk, lesson repeated in unison, very loud, our hands over our ears to understand better। लेकिन क्लास में जब ये गया आदमी तो अन्य और दिनों की तरह उसमें कोई शोर नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, क्लासमेट्स थे, सारे लोग बैठे थे। ये शर्माता हुआ क्लास में घुसा तो देखा कि सारे बच्चे तो बैठे हुए थे, उसके अलावा वहाँ पे सर जी जो ओकेजन पर कपड़ा पहन करके आते थे, वो कपड़ा आज वो पहन करके आए थे। ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. लेकिन सबसे बड़ी बात जो क्लास में थी, पिछले वाला बेंच सब जो खाली रहा करता था, आज उस पर भी लोग बैठे थे। वो गांव वाले लोग थे। ओल्ड हॉसर with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, several others besides. क्लास में बच्चों के अलावा गांव के कुछ रिस्पेक्टेबल लोग भी वहाँ बैठे थे। ये देख करके बच्चे को, फ्रेंच को आश्चर्य हुआ, जो स्कूल का छात्र था। वो डरता हुआ स्कूल में गया था। क्लास में एक सर ने जो टास्क दिया था ये पार्टिसिपल याद करने का, वो उसको याद नहीं था। वहाँ पर वो बोलना शुरू किए। सर बोले, ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स। क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट जो है वो डिफीट हो चुका है, तो कहने का अर्थ कि एल्सेस और लॉरेन पर अब जर्मन का राज्य है, तो ऑर्डर आया है कि कल से जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच का ये लास्ट क्लास है। ये बहुत बड़ा थंडर क्लैप मतलब ये ठनका की तरह, ये बहुत ही जोरदार जो इफेक्ट वाला हो, उसको बोलते थंडर क्लैप था ये मेरे लिए। सुना और मैं सन्न रह गया। आई वॉज क्वाइट अमेज्ड टू हियर दैट। सो थंडर क्लैप फेल अपॉन द चिल्ड्रेन। दीज वर्ड्स वेयर टू मी ऑन द wretched that they had put the town hall। उन्होंने बताया सर ने कि कल से ये आज अंतिम क्लास है फ्रेंच का, कल से इस क्लास में ये पढ़ाई होगी जिसका नाम होगा जर्मन। अब ये कहने का अर्थ ये हुआ कि सर इनको बुलाए थे टास्क सुनने के लिए बच्चे को, और बच्चा वहाँ गया तो सर बोले कि ये लास्ट क्लास है, आज के बाद जर्मन फ्रेंच का क्लास नहीं होगा, जर्मन का क्लास होगा। और सर जी बच्चे को अपने पास बुलाए और बुला करके इसको बोले कि देखो बेटा, मैंने तुमको बहुत कुछ पढ़ाया, तुम पढ़ने में फ्रेंच में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन ये आज लास्ट क्लास है और आज के बाद ये फ्रेंच की पढ़ाई अब नहीं होगी। ओनली जर्मन विल बी टॉट बिकॉज दिस एरिया हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय जर्मन पीपल and Germans had controlled, and so German language will be taught here. No ruler wants to teach other language. All rulers, all power holding people want to spread their own language. As in our own country also we had seen that how English people spread the language of English in our country, and at last we lost our own culture and we became enslaved। ये बहुत दिनों तक हम लोग गुलाम रहे अंग्रेजों का, इसलिए क्योंकि उसके मूल में था कि अंग्रेजी भाषा को उन लोगों ने जबरन हमारे ऊपर थोप दिया। अब सर जी उस दिन ये मिस्टर हैमेल ये साहब ये इन्होंने बताना शुरू किया
कि किस तरह से लैंग्वेज समाप्त कर दिया गया है, फ्रेंच अब पढ़ाई उसकी नहीं होगी। अब वो बोले मोस्ट लॉजिकल, फ्रेंच की बड़ाई उन्होंने किया कि मोस्ट लॉजिकल है, द क्लियरेस्ट क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, वी शुड सेफ गार्ड दिस लैंग्वेज। सर ने क्लास में बताया कि फ्रेंच जैसा लैंग्वेज कोई नहीं है, हमें इसको पढ़ना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। विदेशी लोग आ गए हैं तब भी हमें इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस सर ये बताए बहुत ही इमोशनल हो करके। और उसके बाद क्या हुआ कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, ये फ्रेंच बच्चा जो क्लास में गया था इतना ध्यान से पहले कभी नहीं सुना था, आज वो पूरे ध्यान से सुना और सर ने जो भी बताया वो फ्रेंच में आज इसको बहुत समझ में आया। इतने दिनों के क्लास में जो समझ में नहीं आया था, आज एक ही क्लास में सारी बातें इसे समझ में आ गई। और बच्चे वहाँ बैठे थे, उन सबों को लिखने के लिए सर ने टास्क दिया। अंतिम क्लास था तब भी सर ने कभी क्लास को नेगलेक्ट नहीं किया और पूरी तरह से पढ़ाया। सर ने बच्चे को बताया फ्रेंच को कि क्लास में तुम्हारी पढ़ाई अगर अच्छी नहीं हुई है तो इसलिए नहीं हुई है कि कभी कभी तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी छुट्टी पर जाता रहा। अगर पढ़ाई ठीक से हुई होती, उन्होंने खुद के विषय में भी कहा कि मैंने कभी कभी मैं स्कूल को डिसमिस कर दिया करता था और सब कुछ बता करके बताए कि लैंग्वेज अपना जब तक सेफ नहीं रहेगा तब तक तुम्हारी आज़ादी सेफ नहीं है। सो योर लैंग्वेज मस्ट बी सेफ गार्डेड। उन्होंने बड़ी मेहनत से क्लास उस दिन का फिनिश किया और बोर्ड पर लिखा विवे ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। सर जी बहुत दुखी मालूम पड़े, दीवार पे सर अटका करके बोले, विदाउट ए वर्ड, भी कुछ बोल नहीं पाए। ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और वो हाथ से बोले स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। दिस इज very sympathetic, very touching, and we are getting here. The story is completed. It means that the story is highlighting the importance of the development of one's own language. सर ने बताया किस तरह से विदेशी लोग आए, जर्मन आए तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बैंड कर दिया एंड ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो चैप्टर में यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशंस। तो आप उसमें ये ध्यान देंगे कि जो लैंग्वेज पर क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से वो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों हुआ? बिकॉज द प्लेस वाज ruled by, controlled by now Germans, and so earlier it was controlled by the French people. So when French people were controlling this area, they were teaching French, and now it was being controlled by Germans. So German language was being introduced here. So this question has been framed. French thinks why will they make them sing in German? Pigeons, वो क्लास में बैठा था तो बाहर कुछ बर्ड चहचहा रहे थे, तो ये बच्चा बोला कि पावर से इम्पोज करके तो जर्मन लैंग्वेज इम्पोज किया गया, क्या बर्ड को भी वो लोग फोर्स करेंगे कि वो जर्मन लैंग्वेज में ही गीत गाए बोले? नहीं। तो एक्सप्रेशन की आज़ादी, एक्सप्रेशन का अधिकार मिलना चाहिए। लैंग्वेज मीन्स डज नॉट मीन फॉलोइंग ऑफ अदर्स वन। लैंग्वेज ऑलवेज मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन थाट, द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन थाट। अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार मिले, यही भाषा का महत्व है। तो आप जिस भाषा में इजी महसूस करते हो, जो आपकी मातृभाषा है, उसको बचाना, उसको सेफ करना डेवलपमेंट का पहला फंडा है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू क्वेश्चन आंसर फॉर यू एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो द चैप्टर इज ओवर। और ये आपसे ये रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब more and more so that you may get all the informations on time. Thank you for watching. Thank you for viewing. Have a nice day.